what it says, that in general, the protein conformation with the lowest free energy, that is the most stable conformation, is the one with the maximum number of weak interactions. Okay, so if the maximum number of weak interactions happens in that conformation will be stable, because that conformation is in its least energy state. Okay, because as you know, if the bond is forming, then energy will be released. So maximum number of weak interactions have been formed. So more amount of energy has been released. That means that conformation is in its least stable conformation. Okay. So इसलिए कह रहा है the protein conformation with the lowest free energy. Okay. तो लोएस्ट फ्री एनर्जी में है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल भी होगा. ठीक. तो ऐसे किसी भी प्रोटीन के लिए इस टाइप का कन्फर्मेशन एक या एक से कुछ ज्यादा, फ्यू. ओके. फ्यू का मतलब 3, 4, 5, बस, इससे ज्यादा नहीं. आउट ऑफ मिलियंस ऑफ पॉसिबल conformations of the polypeptide chain. Okay, समझ में आ रहा है? 7th point is clear to you now? सेवन क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? आगे एक बार फिर से समझा. अच्छा, ठीक. See, you know that बॉन्ड को ब्रेक होने में एनर्जी लगेगा और बॉन्ड फॉर्म होने में एनर्जी विल बी रिलीज्ड. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. So if the maximum number of interactions, these are also bonds, but weak bonds. Okay, covalent bond is a strong bond. These are also bond, but weak bonds. Okay, but because of the volume of, means the number of these weak bonds are very high, because the maximum number of weak interactions are happening, because there are many amino acid residues in this polypeptide chain. Okay, so if the maximum number of weak interactions are possible, that means more amount of energy will be released. That will be the maximum energy which can be taken out from that protein. Okay, in that state. So protein will attain a least energy state. If the maximum number of weak interactions have been happened intra-chain, then protein will be in its stable conformation, because the energy has been released, and because the maximum number of the weak interactions have been formed, so maximum possible energy is released from that protein molecule. उस कन्फर्मेशन से फिर कोई दूसरा कन्फर्मेशन नहीं है कि जो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो कन्फर्मेशन ऐसा था जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक इंटरेक्शंस हैव बीन हैपेंड. तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक इंटरेक्शंस हो गया, तो उसके बाद ये एक स्टेबल कन्फर्मेशन है. लेकिन स्टेबल भी कितना है? ये मार्जिनली स्टेबल है, क्योंकि नंबर ऑफ वीक इंटरेक्शंस, क्योंकि वीक इंटरेक्शंस का स्ट्रेंथ जो है वीक है. तो इवन आफ्टर combining all these weak interactions, there is hardly, means if you give 20 to 40 kilojoule per mole, then this conformation will be altered. You can break the maximum number of weak interactions after giving this much energy, heat to the protein. Okay, तो लॉजिक बात है कि अगर मैक्सिमम वीक इंटरेक्शंस होगा तो सबसे लीस्ट एनर्जी स्टेट में रहेगा वो, इन टर्म्स ऑफ. अब आया समझ में?
या अभी भी नहीं आया, इसमें क्या लॉजिक? वीक इंटरेक्शन रहेगा तो लोएस्ट एनर्जी देगा। Maximum number of weak interactions. Suppose if a protein is folded like this, and in this, suppose there is, मान लो एक arbitrary figure लेते हैं, there are hydrogen bonds 100 in number, suppose, and if the same protein is folded in this such a way that the number of hydrogen bonds are now 1000, which will be more stable? Now you tell me. सेकेंड वन। दिस विल बी मोर स्टेबल। ऐसे ही डायरेक्टली भी सोच लो तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही हम कंसीडर करें तो ही, लेकिन प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी है, आयनिक इंटरेक्शंस भी है, वंडरवाल फोर्सेस भी हैं। ओके, तो ये सब का मैक्सिमम इंटरेक्शन जब हो गया, मैक्सिमम पॉसिबल, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मैक्सिमम पॉसिबल इंटरेक्शन 1000 था। अगर 1000 हो गया, और इसका इन दिस, अगर 1000 से सारा कम है, 1000 से मान लो 900 भी हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन इस तरह से फोल्डेड हो, प्रोटीन इस तरह से फोल्डेड हो कि 800 भी हो सकता है, 600, 500, 700, मिलियंस ऑफ पॉसिबल वेज प्रोटीन कैन फोल्ड। लेकिन जिस फोल्डिंग पैटर्न में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वीक इंटरेक्शंस है, फॉर्म हो रहे हैं, मैक्सिमम नंबर, समझते जाओ, तो दैट विल बी मोर स्टेबल। डायरेक्टली कह दोगे हाँ इसमें ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल होगा, ये अच्छे से, ये दिस टर्शरी स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। और केमिकली भी अगर सोचो तो, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है, तो इसमें ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, देन दिस प्रोटीन इज इन इट्स लीस्ट एनर्जी स्टेट और नॉट, एज कंपेयर विद दिस वन energy state, as compared to all these ones, this conformation is in its least energy state। अब आया समझ में? हेलो, यस सर। बोलो आ गया तो, नहीं आया तो फिर बताएंगे। आया समझ में, क्योंकि एक्सप्लेन कर दिए हम। सर ये लोएस्ट फ्री एनर्जी। लोएस्ट फ्री एनर्जी आप नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, कोई भी केमिकल कंपाउंड, सपोज दिस carbon in the CO2 is in its lowest energy state, but when this carbon is in this form, it is in high energy state। ये तो केमिकली हो गया, यानी डेल्टा जी तो इसका यहां निकालेंगे, जी ऑफ, यानी गिब्स फ्री एनर्जी कंटेंट इन द मीथेन इज हायर देन द, मच हायर देन द जी इंटरनल एनर्जी ऑफ द CO2 बॉन्ड। यह इंटरनल एनर्जी कहां से आ रहा है? इंटरनल एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द कोवैलेंट बॉन्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन देम। दैट मीन्स अब G जो है इंटरनल एनर्जी CO2 का सबसे लिस्ट है। व्हाट दैट मीन? कम है CH4 से, दैट इट मीन्स दैट what type of bonds are present in CO2? COO, 2 डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। अब आप जान रहे हैं कि बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी लगता है और बॉन्ड फॉर्म होने में एनर्जी रिलीज होता है। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, एक तो डबल बॉन्ड है, ऊपर से
मतलब कोवेलेंट ही है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, तो इसको डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी और ज्यादा लगेगा सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा। ओके, तो इसको इसीलिए CO2 हाईली स्टेबल है। अब CO2 के बाद कोई दूसरा कंपाउंड में कार्बन जाए CO2 के अलावा, ये ब्रेक हो करके, यानी फिर से कोई नया, ये तो केमिकल रिएक्शन यहाँ हुआ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन जल के साथ जला मीथेन, तो CO2 प्रोड्यूस हुआ और वाटर प्रोड्यूस हुआ। अब इसको बैलेंस कर लेना अपने से। बेसिक केमिस्ट्री आप समझो। सर नाजिया परवीन। ओके, लास्ट में कर देंगे, बहुत लेट आए आप। CO2 जो है, अब CO2 से फिर कार्बन निकल के फर्दर किसी दूसरे कंपाउंड का अगर पार्ट बनेगा, तो इट विल ऑलवेज गोज इन हायर स्टेट, it will always go in higher state. Why? Because here, to break this bond, you need a large amount of energy, this double bond. अब इसके बॉन्ड को ब्रेक होने में ही एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लग गया, तो अब कार्बन दूसरे कंपाउंड में जाके जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, चाहे डबल बॉन्ड ही कर ले, ट्रिपल बॉन्ड ही कर ले, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है, इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ओके, तो जिस भी कंपाउंड में ये कार्बन अभी जाकर के बनाएगा बॉन्ड, अगर ब्रेक किया, सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि CO2 एज ए फ्यूल यूज नहीं हो सकता है, ये एकदम लीस्ट एनर्जी स्टेट में है। CO2 कैन ओनली बी ए बाय प्रोडक्ट ऑफ ए कंबस्शन रिएक्शन, नॉट ए बाय प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट ऑफ ए कंबस्शन रिएक्शन। तो इसके ये फिर अब एज ए फ्यूल नहीं हो सकता। यहाँ भी कार्बन है, आप सोचोगे यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन एज ए फ्यूल यूज हो रहा है, यहाँ कार्बन जो है एज ए फ्यूल नहीं काम आ रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस, टू ब्रेक दिस बॉन्ड यू नीड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसी में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लग गया, तो आगे जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है होगा सी का, वो उससे कम ही है, तो हमेशा जो है ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी जो है आपका, यानी जो बनने में, अब ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन, अच्छा डेल्टा जी छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। अब सोचो कि CO2, hypothetical condition, if CO2 is used as a fuel, then what will happen? बॉन्ड फॉर्मेशन होने में CO कार्बन का अब नया बॉन्ड बना, मान लो किसी भी एलिमेंट के साथ बन रहा है, सबके साथ इसका स्ट्रेंथ वीक है जितना ऑक्सीजन के साथ है, लीस्ट एनर्जी स्टेट में, तो वो वहां पर नया बॉन्ड बनने में एनर्जी जो रिलीज होगा, सपोज दैट एनर्जी इज H, डिनोट कर लो, मतलब मान लेते हैं H है वो एनर्जी नया बॉन्ड बनने में, इफ CO2 इज यूज्ड एज ए फ्यूल। तो और अगर फ्यूल के रूप में यूज हो रहा है, तो पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तब ना नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो पहले बॉन्ड ब्रेक होने के लिए इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा। ओके, इसका काफी हाई है, डबल H, डबल H चाहिए। तो चूंकि अब ये बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत हाई होगा टू स्टार्ट दिस रिएक्शन, much higher. This activation energy will be much higher than the energy released during the bond formation. तो अब ये H, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग गया, और बॉन्ड फॉर्मेशन होने में कम एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो क्या हो गया, ये ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, कैसा रिएक्शन होगा? दिस विल बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। This will be an highly endothermic reaction. Okay, तो CO2 cannot be used as a fuel, क्योंकि ये एंडोथर्मिक हो गया, हाईली, आपको ऊपर से एनर्जी देना पड़ गया। But CO2 can be used can be used for the synthesis of energy storing molecules। इसी वजह से अब फोटोसिंथेसिस होगा,
वहां से एनर्जी आया, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, एनर्जी यूटिलाइज कर लिया। ओके, यूटिलाइज करने के बाद इन दैट एनर्जी हैज बीन यूज्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू CH बॉन्ड्स। ये O रिप्लेस होकर क्या आएगा, CH बॉन्ड आएगा कार्बोहाइड्रेट में, या हाइड्रोक्सिल आएगा OH होगा, या कीटोन ग्रुप बनेगा, या एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। अब आया बात समझ में? इसीलिए ये सब जल करके ये वो एक ऑर्गेनिक रिएक्शन बनता है। ओके, आपका, क्योंकि इसका एनर्जी स्टेट फिर हाई है कार्बोहाइड्रेट का, और CO2 जो है सबसे लीस्ट एनर्जी स्टेट में। सेम गोज फॉर वाटर, इसीलिए वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर को, वाटर यू कैन से दैट water is highly reduced form of oxygen. Okay, water cannot be reduced further. इसीलिए जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो प्रोटॉन जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से गया, वो प्रोटॉन जो है यूज कर लिया जाता है वाटर को रिड्यूस करने में। और जब वाटर रिड्यूस होता है तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि फिर ऑक्सीजन का एनर्जी स्टेट वाटर में जो है वो लिस्ट है, और ऑक्सीजन का एनर्जी स्टेट एज O2 इज हाई। इसीलिए जब वाटर को ब्रेक करना होता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एनर्जी इज कंज्यूम्ड। आप इलेक्ट्रिक वायर अगर कनेक्ट करो बकेट में, वाटर हीटर वगैरह यूज किए होगे, बुलबुला उठता है पानी में, ध्यान दिए हो कभी? हेलो, क्या हो, सब सुस्त है क्या? कोई सुन नहीं रहा है मेरा बात? यस सर, सुन रहे हैं सर। हाँ तो क्या पूछें, कुछ बोलते नहीं हो। चलो कोई बात नहीं। हाँ सर, देखे हैं बुलबुला उठता है। वो जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जब ब्रेक हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ओके, तो यहाँ पर ये कहने का मतलब हुआ प्रोटीन में लीस्ट एनर्जी। क्या सवाल था साक्षी तुम्हारा एग्जैक्टली? सब सोया हुआ है। चलो ठीक है, पहले जाग जाओ तब क्लास करते हैं, ठीक? नो सर, सर जाग रहे हैं सर। नहीं तो कुछ जवाब ही नहीं देते, तो पूछ रहे हैं क्या सवाल था साक्षी, तो बोल ही नहीं रही हो। सर वो जो बुलबुला होता है पानी में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ तो वो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अभी लीस्ट एनर्जी स्टेट से रिलेटेड आप जो सवाल पूछे थे, मैं इधर कार्बन ऑक्सीजन और H2O पर गया। आपका वो सवाल क्या था वो पूछ रहा हूँ। लोएस्ट फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि ज्यादा बॉन्ड रहेगा तो उसका लोएस्ट फ्री एनर्जी रहता है, हाँ तो ज्यादा बॉन्ड ये फॉर्म, क्वेश्चन था। हाँ तो समझ में आ गया ना, ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म हो गए पॉसिबल, ठीक है, जितने पॉसिबल हो सकते थे उससे कम बने, तो दैट मीन्स इट इज इन हायर एनर्जी स्टेट, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है। अब बॉन्ड फॉर्म होगा तो बॉन्ड फॉर्म होने के दौरान एनर्जी रिलीज होता है ना, और एनर्जी जब रिलीज होता है तो वो कहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, जो इंटरनल एनर्जी है उस केमिकल कंपाउंड में उसी से रिलीज होता है। इंटरनल एनर्जी कहाँ पर स्टोर्ड है? इंटरनल एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, और जो भी, हाँ बोलिए। समझ गया सर। ओह सॉरी, 7th हो गया,
eighth point is the stability of a protein is not simply the sum of free energy of formation of many weak interactions within it, or not simply the sum of free energy of formation of the many weak interactions within it. Every hydrogen bonding group in a folded polypeptide chain was hydrogen bonded to water prior to folding. And for every hydrogen bond formed in a protein, a hydrogen bond of similar strength between the same group and the water was broken. इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप समझ रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशंस हुआ, तो वह जो है लीस्ट एनर्जी स्टेट में तो है, स्टेबल भी है, लेकिन इन द एक्वस सॉल्यूशन, अभी आप थ्योरेटिकली आप प्रैक्टिकल में सोचो, एक्वस सॉल्यूशन में साइटोप्लाज्म इज एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर है समझ लो, इसमें आप प्रोटीन ऐड किए, देन व्हाट विल हैपन, पहले प्रोटीन का अपना इंट्रा चेन बॉन्डिंग होगा, ओके। अब ये इंट्रा चेन बॉन्डिंग प्रोटीन में प्लेस करने के बाद, वाटर में प्लेस करने के बाद, वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, हर वाटर मॉलिक्यूल का आपस में एक वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। प्रोटीन ऐड होने के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर का रिप्लेस हुआ, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल अगर पॉलीपेप्टाइड से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म किया, दैट मीन्स that water molecule is now not forming the hydrogen bond with another water molecule. Before the addition of this peptide into water, all water molecules were hydrogen bonded together, one from another, one to another. Okay, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो थे हाइड्रोजन बॉन्ड्स में इन्वॉल्व थे, लेकिन जब प्रोटीन आया तो कुछ वाटर जो है प्रोटीन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया, दैट मीन्स कि ये वाटर जो है पहले जिस हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाए हुए था वो ब्रेक हुआ एंड न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन है जाता है। सो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन स्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रहा है वो इंट्रा चेन नहीं है, वो वाटर के साथ हो रहा है, ओके। सो इस वजह से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये इनकरेक्टली फोल्डेड या अनफोल्डेड प्रोटीन जो है वो अपने फोल्डेड कन्फर्मेशन में नहीं आ पाएगा, हिंड्रेंस पैदा करेगा, इट विल बी ए रेसिस्टिंग फोर्स। तो यही सवाल है कि फिर सेल के अंदर कैसे प्रोटीन फोल्डिंग हो रहा है, क्योंकि आप जान रहे हो कि वाटर में अगर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस हो करके फिर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ प्रोटीन के साथ, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा प्रोटीन के साथ, इट विल काउज ए हिंड्रेंस फॉर द इंट्रा चेन फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन के अपने मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने में ये अवरोध पैदा करेगा, यह हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर के साथ फॉर्म हुआ। आया समझ में ये बात? यस। तो फिर सर सेल के अंदर कैसे फॉर्म होता है? यही तो सवाल है ना, इसी का तो जवाब ढूंढ रहे हैं। And still the mechanism is not fully understood. How the protein folding is happening then into that correct conformation which is biologically functional. क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो प्रोटीन नेसेंट पॉलीपेप्टाइड जैसे ही सिंथेसाइज हुआ आफ्टर ट्रांसलेशन भी तो हो रहा है सब एक्वस मीडियम में ही, कोई सूखा थोड़ी है। आरएनए आपका आरएनए पॉलीमरेज भी एक्वस मीडियम में हो रहा है, सब वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है। और ट्रांसलेशन मशीनरी भी, राइबोसोम भी साइटोप्लाज्म में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है, वाटर है।
सिंथेसिस होते के साथ वाटर के साथ कांटेक्ट है। पहला अमाइनो एसिड निकला वही वाटर से घिरा हुआ है, दूसरा निकला अमाइनो एसिड वो भी वाटर से घिरा हुआ है, सब वाटर में घुस रहा है जैसे ही सिंथेसाइज हुआ। ओके, और जब वो निकला सिंथेसाइज होकर के तो वाटर जो है मैक्सिमली हाइड्रोजन बॉन्डेड है नेसेंट पेप्टाइड के साथ। अब ये कैसे करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में इंटरचेंज? समझ में आया बात? इसीलिए पहले आपको वो समझाना जरूरी था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तब वह लीस्ट एनर्जी स्टेट में आएगा। तो ड्राई सरफेस पर हम आप इमेजिन कीजिए कि हम समझा रहे हैं, मतलब ये प्रक्रिया हो रही है थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली इन विवो हो क्या कंडीशन है, क्योंकि वो पेप्टाइड वाटर से घिरा हुआ है। आए समझ में? Okay. So the net stability contributed by a given weak interaction or the difference in free energy of the folded and unfolded states may be close to zero. We must therefore look elsewhere to explain why native conformation of a protein is favored. यानी ये जीरो कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये प्रोटीन इनकरेक्टली फोल्डेड प्रोटीन जो है वो वाटर के साथ मैक्सिमली हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो वो इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने में फिर उसमें वो स्वतः ही तो नहीं, कोई ऐसा डेल्टा जी जो है वो निगेटिव नहीं है उसकी तरफ कि मैक्सिमली फोल्डेड होगा इंट्राचेन, तो डेल्टा जी इज इन माइनस, इट इज लार्ज। क्या हो गया निशर? खाना म्यूट करो। समझ में आ रहा हो? तो डेल्टा जी, क्योंकि इस स्टेट से ये भी इसका एक लीस्ट एनर्जी स्टेट कहलाएगा, हाइड्रोजन के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, और इंट्राचेन भी मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, वो भी एक लिस्ट, वन ऑफ द लिस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ दिस प्रोटीन होगा। अब उस दोनों लिस्ट स्टेट में डेल्टा जी कितना अंतर होगा? कोई बहुत ज्यादा लार्ज माइनस तो होगा नहीं, ठीक है? तो जब लार्ज नहीं होगा तो अनफोल्डेड स्टेट से फोल्डेड स्टेट में जाएगा नहीं स्वतः ही, खुद ही। इसीलिए कह रहा है वी मस्ट देयरफॉर लुक एल्सवेयर टू एक्सप्लेन व्हाई नेटिव कन्फर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन इज फेवर्ड। तो अब यहाँ पर प्रोटीन फोल्डिंग मैकेनिज्म है and it is guided mechanism. Other protein molecules take part in this machinery. सेप्रोन प्रोटीन्स होते हैं। चलो ये बहुत, ये इसीलिए आपके सिलेबस में है कहीं प्रोटीन फोल्डिंग अलग से नहीं होगा, ठीक है? आगे स्पेशलाइजेशन में जाओगे और फर्दर देन यू विल लर्न इन डिटेल अबाउट दिस। आगे चले, पॉइंट नंबर 8 क्लियर टू यू? Yes. Yes, sir. Ninth, we find that the contribution of weak interactions to protein stability can be understood in terms of the properties of water. यही बात जो बताए, pure water contains a network of hydrogen bonded H2O molecules. No other molecules has the hydrogen bonding potential of water. वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोटेंशियल है सबसे ज्यादा है जितने भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में। एंड अदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एन एक्वस सॉल्यूशन, तो इसलिए वाटर का जो लिक्विड है वही एक्वस सॉल्यूशन है, लिक्विड वाटर। अदर मॉलिक्यूल, इसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल ऐड होंगे इस सॉल्यूशन में, उसमें क्या होगा, वाटर जो है, व्हेन वाटर सराउंड डिसरप्ट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द वाटर। प्योर वाटर में मैक्सिमम है, कोई मॉलिक्यूल उसमें गया तो इट विल डिसरप्ट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द वाटर, क्योंकि उस मॉलिक्यूल के अराउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न विल बी डिफरेंट, वो बदल जाएगा। अगर वह मॉलिक्यूल जो आप डाले हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में, इफ इट इज पोलर, अगर पोलर है तब तो ठीक है, वो डिजोल्व भी हो जाएगा इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से।
अगर पोलर, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो फॉर्म कर रहा है, यानी पोलर है, तो वो पोलर ग्रुप, पोलर कंपाउंड भी जो है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके वो डिजोल्व हो जाएगा। अगर नॉन पोलर ऐड कर दिए तो जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिसरप्ट करता है, क्योंकि इसमें क्या बताए थे आपको, मिथाइल ग्रुप्स हैं, नॉन पोलर्स हैं। ओके, नॉन पोलर है तो कार्बन भी है इसमें।